नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पति डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। 1980 सत्संग मैगजीन। I became enlightened when I read the book You Forever on December 29, 1979. Then started the book reading Yagna right in earnest since 1980. In the year in Kannur, along with Mr. K. Suryamohan, son of my colleague in Coromandel Fertilizer Limited, Mr. Narasimha Rao, I started a monthly typed magazine called Satsang. My first effort in spreading spiritual wisdom, we used to type being about 100 copies. Every month, I would pick up important message quotations from the books I would read, and Surya Mohan would type and get copies through stenciling, and I would give to friends those issues. For 12 months throughout the year 1980, we would work and bring out satsang consisting of about 15 to 20 pages. Now we have Spiritual India and Spiritual Science full-fledged magazine. Prior to these two, with the help of Dr. Yugandhar, we had brought Pyramid Times from Tirupati. Later, we had our Pyramid Light brought with the help of Dr. K. Newton. However, the seeds of PSM were sown in 1980. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। 1980 सत्संग मैगजीन। I became enlightened when I read the book You Forever on December 29, 1979. Then started the book reading Yagna right in earnest since 1980. In the year in Kurnool, along with Mr. K. Surya Mohan, son of my colleague in Coromandel Fertilizer Limited, Mr. Narasimha Rao, I started a monthly typed magazine called Satsang. My first effort in spreading spiritual wisdom, we used to stencil type and bring about 100 copies every month. I would pick up important passages, quotation from the books I would read, and Surya Mohan would type and get copies through stenciling, and I would give to friends those issues. For 12 months throughout the year 1980, we would work and bring out satsang consisting about 15 to 20 pages. Now we have Spiritual India and Spiritual Science full-fledged magazines. Prior to these two, with the help of Dr. Yugandhar, we had brought Pyramid Times from Tirupati. Later, we had our Pyramid Light brought with the help of Dr. K. Newton. However, the seeds of the PSM were sown in 1980. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। 1980 सत्संग पत्रिका। मैं प्रबुद्ध हो गया जब मैंने यू फॉर एवर पुस्तक पढ़ी 29 दिसंबर 1979 को। फिर 79 से वाचन यज्ञ का जोर शोर से आरंभ किया, यानी पढ़ना शुरू किया। वर्ष में करनूल में कोरमंडल फर्टिलाइजर लिमिटेड में मेरे सहयोगी श्री नरसिम्हा राव के पुत्र श्री के सूर्यमोहन के साथ मैंने सत्संग नामक एक मासिक पत्रिका टाइप शुरू की। आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने में मेरा पहला प्रयास। हम स्टेंसिलिंग टाइपिंग करते थे और हर महीने लगभग 100 प्रतियां लाते थे, जिन पुस्तकों में मैं पढ़ता था और सूर्य मोहन टाइप करते थे। उनमें से महत्वपूर्ण अंश उदाहरण उठाता था और स्टेंसिलिंग के माध्यम से प्रतियां प्राप्त करता था और उन अंकों को दोस्तों को देता था। पूरे वर्ष 1980 में 12 महीनों तक हम काम करते रहे और लगभग 15 से 20 पृष्ठों का सत्संग निकाला। अब हमारे पास आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विज्ञान जैसी पूर्ण पत्रिकाएं हैं। उन दोनों में से पहले डॉक्टर युगंधर की मदद से तिरुपति से पिरामिड टाइम्स ला चुके थे। बाद में डॉक्टर न्यूटन की मदद से हम अपना पिरामिड लाइट लेकर आए। हालांकि पीएसएम के बीच 80 में बोए गए थे। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। 1980 सत्संग पत्रिका। मैं प्रबुद्ध हो गया था। यहाँ पति सर बता रहे जब वो इलेक्टेड हो गए थे तब उन्होंने यू फॉर एवर पुस्तक पढ़ी 29 दिसंबर 1989 को। फिर 1980 को यह पुस्तक वाचन यज्ञ का जोर शोर से पढ़ना शुरू किया। वर्ष
कुरनूल में कोरमंडल फर्टिलाइजर लिमिटेड में उनके सहयोगी नरसिम्हा राव के पुत्र के सूर्यमोहन के साथ उन्होंने सत्संग नामक पत्रिका मासिक जो थी उसको टाइपिंग शुरू करी। आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने में उनका यह पहला प्रयास पत्री सर का। ये स्टेंसिलिंग टाइपिंग करते थे, हर महीने लगभग 100 प्रतियां लाते थे और जिन पुस्तकों को पढ़ते थे उनमें से महत्वपूर्ण उदाहरण उठाते थे और स्टेंसिलिंग के माध्यम से प्रतियां प्राप्त करके उन अंकों को दोस्तों में बांटते थे। पूरे वर्ष 1980 में वो 12 महीने तक काम करते रहे और लगभग 15 से 20 पृष्ठों का सत्संग पत्रिका निकाला। अब हमारे पास आध्यात्मिक विज्ञान और आध्यात्मिक भारत नामक पुस्तक जो है, आध्यात्मिक पुस्तकें उनके पास है, पूर्ण पत्रिकाएं हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। इन दोनों से पहले डॉक्टर युगांधर की मदद से तिरुपति से पिरामिड टाइम्स ला चुके थे। बाद में डॉक्टर के न्यूटन के मदद से अपना पिरामिड लाइट लेकर आए और हालांकि पीएसएन के बीच 1980 में ये बोए गए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, पत्री सर के जो प्रयास है, जो आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक जो भारत के नाम से 2 पत्रिकाएं हैं, स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, उनके बारे में बताए और सत्संग नाम पत्रिका जो मासिक जो निकालते थे। बाद में उन्हें 15 से 20 पृष्ठों का भी पत्रिका सत्संग नाम निकाला और किस तरह पत्री सर उनको टाइपिंग करके निकालकर और अपने दोस्तों को किस तरह बांटते थे। स्वाध्याय को और आध्यात्मिक जो ज्ञान है लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। और मेरे प्यारे दोस्तों, पत्री सर ने हमेशा ध्यान, स्वाध्याय और संगति के बारे हमें बताया और हमें इन चीजों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।